Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Organization and Management. Today we are going to discuss the forms of business organization part 2. In the earlier session, we have discussed what we have discussed. We have discussed the forms of business organization. We have discussed the two part, sole proprietorship and the joint Hindu family businesses. हमने दो बिजनेस के बारे में डिस्कस किया एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ business. As you know that, my dear student, one of the first decision that you will have to make as a business owner is how your business should be structured and what forms of business structure you want to establish. So you need to know the advantages and disadvantages of each type of the forms of business organization. So whenever you make any you start going to start any business, you have to make sure that you are making a right decision for the new kind of business and so you have to ensure that what exactly your need, and as per the your need of the business and the particular things, you have to decide what forms of business you want to establish. तो इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. तो थर्ड पार्टनरशिप हम पढ़ने जा रहे हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू वांट टू have partnership kind of business, so what kind of characteristics and what kind of a need you exactly need, and why you have to be if you want to part of this partnership kind of business, so what exactly things you required. Is this all these characteristics you really want to have in this particular kind of business, then only you can apply, you can establish this partnership kind of business. तो डिपेंड करता है, अगर आप पार्टनरशिप में ओपन करना चाहते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको चाहिए तभी आप इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं. बट क्या होता है पार्टनरशिप, आई एम डिस्कसिंग. तो एज यू नो दैट द इनहेरेंट at disadvantages of the silk proprietorship in financing and managing and expanding business paved the partnership as a viable option. The partnership serve as that answer to the need of the greater capital investment whenever the you required you need greater amount of capital investment, and you need varied or versatile skills, and you want to share the risk in that particular kind of condition, you require to have a partnership kind of business. Partnership क्या होता है? Partnership is a legal relationship formed by the agreement between two or more individuals. Whenever the two and more individual involve or uh, form agreement and to carry out business, and this is basically partnership. तो partnership में क्या होता है? Basically two and more individual to carry a business, they comes into an agreement, and these two person are known as owner. तो इनको ओनर कहा जाता है, को ओनर. बोथ पर्सन are known as co-owner. In each member of the group is individually known as partner. Means each person of the partner is known as partner. तो एक person जो होता है is known as partner, and the both यहाँ पर एक owner नहीं होता है, two owner होते हैं. That's why we use the term that is a co-owner. And the collectively both the partner of the partnership kind of business, the both partners collectively, both the member of the this particular kinds of business, a point of organization known as partnership firm. तो पार्टनरशिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो या दो से पार्टनर होते हैं, दोनों पार्टनर्स होते हैं और दोनों कलेक्टिवली इनको पार्टनरशिप फर्म्स कहा जाता है. These firms are governed by the Partnership Act 1932. That is the most important thing. Though partnership, whenever you want to have a partnership kind of business, you have to be follow the rules and regulation of the Indian Partnership Act 1932. तो 1932 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू बी फॉलो दैट काइंड ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. द पार्टनरशिप एक्ट, according to the Partnership Act 1932, it defined the partnership as the relationship between the two and between the relationship between the person who agree to share the profit of the business carried on or by or any of them acting for all.
अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, इन्होंने पार्टनरशिप को डिफाइन किया है कि एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पर्सन एंड बोथ पर्सन, दो व्हेनेवर द टू पर्सन, जो पर्सन होते हैं दोनों बीच का एक रिलेशनशिप, इट्स काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप formed by the agreement. And here the both person or both the partner agree to share the profit of the business as well as the loss of the business. They agree to share the loss as well as the profit of the business to carry out the all the activity of the business. तो business की activity को करने के लिए they agree to share the loss and the profit. तो ये हुआ पार्टनरशिप की डेफिनेशन. नाउ I'm going to discuss what exactly the characteristics and feature of the partnership firms. तो फर्स्ट फीचर्स है दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द partnership, how the partnership is formed. So the partnership form of a business organization is governed by the Indian Partnership Act, as you know that, and we have already discussed. And it comes into the existence through a legal agreement. And the formation of partnership is basically how it came into the existence is came it comes through a legal relationship or a legal agreement, wherein the terms and the condition governing the relationship among the member and the sharing of the loss and the profit and the manner of the conducting business are specified. So we can say that it's basically mm, in during the how it is formed, you can say that it's basically a legal kind of a relationship. It's formed through a legal contract. And it is most important thing is here, the business must be lawful and run with the motive of the profit. So whenever you form a partnership form, your motive should if you have wanted to have this kind of partnership organization, then you have must have lawful and you have to be run the business business with the motive of profit, and your business should be lawful. And the two people coming together for a charitable purpose will not be considered a partnership firm. You if you have an charitable kind of purpose, then you don't need to be involved in that kind of partnership firm. अगर आपका प्रॉफिट का ही मोटिव है, देन ओनली यू कैन कम्स इनटू पार्टनरशिप फॉर्म. अदर देन अगर आपको कोई चैरिटेबल एंड हेल्पिंग पीपल दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे. अगर आपका पर्पस प्रॉफिट का है, प्रॉफिट मेकिंग है, एंड यू वांट टू हैव एन लॉफुल बिजनेस, और तभी आप इसमें इन्वॉल्व होंगे. और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर is that you have to be the formation of the partnership is basically a legal relationship, or it's a legal agreement which is formed between two party. So this is all about the formation. And another characteristic is liability. The partners of the fund have a unlimited liabilities. The most important thing is here, the partner of the firm have a unlimited liabilities. Liabilities क्या होता है मीन्स जब भी कोई भी लॉस अगर होगा, हु विल गोइंग टू अकर दैट लॉस. तो यहाँ पर दोनों ही पार्टनर जो होंगे आर इक्वली take that loss and equally responsible for repaying the debt in case of the business and asset are insufficient. And furthermore, we can say that the partner are jointly and individually liable for the payment of the debt, and jointly all the partner are responsible for the debt, and they contribute in the proportion of their share in the business, and as such are liable to that extent. So this is all about the liability basically distributed, or you can say that it's the partner of the partner and amount of money equivalent to the share in a liabilities as per their contribution, or as per their you can say that uh, as per their individual proportion of their shares, they are responsible for their liabilities too. तो यहाँ पर डिपेंड है कि दोनों पार्टनर अगर इक्वली शेयर्स में इन्वॉल्व है, तो अगर इक्वल है तो बोथ पार्टनर विल लायबल फॉर द इक्वल लायबिलिटी आर इक्वल. और अगर दोनों के दोनों अगर इलीगल इनका दिया जो शेयर्स है वो अगर इन प्रपोर्शन इक्वल नहीं है, अगर किसी का 40% शेयर्स है और किसी
किसी का 60% है, तो 60% पर्सन आर मोर लायबल टूवर्ड्स द बिजनेस। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि डिपेंड करता है कि दोनों की पार्टनरशिप का जो शेयर है वो क्या है। वैसे मोस्टली पार्टनरशिप फॉर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होता है। इट मीन्स बोथ पार्टी आर इक्वली लायबल फॉर द बिजनेस। लायबल का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मीन्स आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग द बिजनेस, चाहे वो लॉस एंड प्रॉफिट में होगी, आप दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। Now the another thing is here, in a partnership, risk bearing. The partner bear the risk involved in running a business as a team. As you know that the partner, both partner are equally responsible for the business. So the partner bear the risk involved in a running a business as a team. So both partner as a team, they have to be um, adapt, or they have to be they have to be um, absorb the loss equally. And reward comes in the form of profit, which are shared by the partner in agreed proportion. Not only the risk, but also the profit should be shared as per the partner agreed ratio. However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses. तो यहाँ पर जैसे प्रॉफिट शेयर होता है, इन अ सेम मैनर रिस्क शुड बी शेयर इक्वली. Now the another thing is here, the decision making and control. Most important thing is here, the partner shares among the themselves the responsibility of decision making and control of the day to day activity. As you know that the partner shares among themselves the responsibility of decision and control the day to day activity. Decisions are generally taken with the mutual consent. Means the both partner are mutually decide what kind of decision they have to take regarding the partnership. And thus the activity of partnership managed through a joint effort of the all the members or the all the partners. तो दोनों मिलकर ही डिसीजन लेंगे, एंड दोनों ही कंट्रोलिंग जो बिजनेस का होगा पार्टनरशिप फर्म में, दोनों मिलकर ही कंट्रोल करेंगे, दोनों पार्टनर्स जो होंगे, बिकॉज बोथ पार्टनर आर द को ओनर ऑफ द कंपनी. नाउ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप इज द continuity. The partnership is a characteristic by the lack of continuity of the businesses since the death, or you can say the retirement, insolvency, or the insanity of any partner can bring an end to the businesses. However, the remaining partner may, if they desire, or you can say they continue the business on the basis of the new agreement. Most important thing is here in a partnership fund is lack of continuity of the business. If one partner, if anything happen uh, with the one partner in a partnership business, the business comes to an end. तो यहाँ पर एक भी पार्टनर को अगर उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी. मीन्स बिजनेस कम्स टू एन एंड. एंड however you can say that the remaining partner जो है वो can, if they desire, if they want, they can continue the business with the another new kind of agreement with an another person. तो वो दूसरे पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होके कर सकता है, बट द थिंग इज हियर कि जो पहला पार्टनरशिप वाला तो वहाँ पर वो बिजनेस स्टॉप हो जाता है. नाउ द अनदर नंबर ऑफ पार्टनर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कि अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ दो ही पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं? नो माय डियर स्टूडेंट, the minimum number of a partner needed to start a partnership firm is 2. तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 462 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दिस पार्टनरशिप नंबर्स इज डिसाइडेड. एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 एंड सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट कि कितना है, मगर मैक्सिमम लिमिट है जो 100 है, एंड मिनिमम क्या है 2 है. तो यू कैन से दैट कि अभी जो 2000 कंपनी रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग एज पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कैन बी 50. तो अब जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2014 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 50 कर दी गई है. तो दिस इज द ऑल अबाउट 2 मिनिमम होते हैं, 100 मैक्सिमम होते हैं, मगर अभी जो लेटेस्ट जो एट प्रेजेंट है वो 50 नंबर हो गया है. तो ये आप थोड़ा सा ये आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 14 के अकॉर्डिंग, 2014 के अकॉर्डिंग, its number is comes to maximum number of members can be 50. Now mutual agency. Mutual agency means that the definition of partnership, as you know, that the highlight the fact that it is a business carry on by all and any of the partner acting for the all. Or you can say that in other word, every partner is both an agent and principal in
पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस, तो दोनों पार्टनर है, बोथ पार्टनर इज बेसिकली दोनों के दोनों ही एजेंट एंड बोथ एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, दोनों के दोनों एजेंट भी होंगे एंड दे एज वेल एज वर्क एज एन प्रिंसिपल. He is an agent of the other partner as he's a present themselves and thereby bind them through his act. It means that both partner are work as agent and as well the principals. तो इन एक पार्टनर जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा पार्टनर एक तरह से एक्ट एज एन एजेंट. तो यहाँ पर दोनों की एक्टिविटी, दोनों की चीजें म्यूचुअल एजेंसी की तरह वर्क कर रही हैं. जो अदर दोनों पार्टनर जो हैं वो एजेंट एंड प्रिंसिपल की तरह बिहाफ पे एक दूसरे की वर्क करेंगे. इट मीन्स दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी एंड बोथ पार्टनर बोथ आर वर्क एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल. तो एजेंट कौन होता है? एजेंट बेसिकली होता है जो प्रिंसिपल की बिहाफ में वर्क कर सकता है, और प्रिंसिपल मेन जो वर्क हो, जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ दोनों के दोनों पर्सन, अगर एक पर्सन एबसेंट है तो दूसरा पर्सन अगर कुछ भी बात बोल रहा है तो वो जो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बोथ वर्क एज एन एजेंसी. तो यहाँ पर दोनों की एक्टिविटी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर पॉइंट इज हियर इन पार्टनरशिप फॉर्म. पीएफ मीन्स होता है पार्टनरशिप फॉर्म. आई हैव यूज्ड द टर्म शॉर्टकट. मैं एक शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर वर्ड पीएफ वर्ड किया हुआ है. सुटेबिलिटी ऑफ द पीएम. अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में जाना चाहते हैं तो क्या व्हाट काइंड सुटेबिलिटी क्या है? Such firms are most suitable for the comparatively when and what condition you have to have partnership firm. The such firm are most suitable. अगर आप इस फर्म में आना चाहते हैं तो ये suitable उन्हीं लोगों के लिए जब आप basically you want to establish a small businesses such like retail, wholesale trade, professional services, medium size mercantile houses and a small manufacturing unit अगर आप ओपन करना चाहते हैं, then you can go into particular kind of business organization forms में आप इसको ओपन कर सकते हैं. मीन्स अगर आप पार्टनरशिप फर्म्स में आप आ सकते हैं अगर आप स्मॉल बिजनेस, रिटेल, होलसेल बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, तो ये सुटेबल, दैट काइंड कंडीशन में आपके लिए सुटेबल है. नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस. तो हम एडवांटेजेस पढ़ने थे. इट इज टू स्टैब्लिश डेफिनेटली कंपेयर टू द अदर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप रिक्वायर मिनिमल पेपर वर्क यहाँ रिक्वायर्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट टू स्टैब्लिश. यहाँ एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू पार्टनर. तो ये बहुत इजी टू स्टैब्लिश है. इफ यू आपको दूसरे पार्टनर से सिर्फ एग्रीनेस चाहिए, मिनिमल पेपर वर्क के थ्रू यू कैन स्टैब्लिश एन पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस. अनदर फीचर्स इज पार्टनर कैन एन कंबाइन एक्सपर्टीज. मोस्ट एडवांटेजेस है दोनों पर्सन जो है दोनों पर्सन अलग अलग स्किल के हैं, वर्सटाइल स्किल्स के हैं एंड दे मोर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज देयर कोलैबोरेटिव स्किल्स. दोनों की स्किल्स अलग है, दे कैन यूज देयर स्किल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस. तो पार्टनरशिप में दोनों का जो म्यूचुअल जो इक्वली दोनों एक म्यूचुअल डिसीजन लेके एक बहुत ही एक बहुत अच्छे लेवल पे एक डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपने स्किल्स को यूज करके दे कैन गिव द एक्सपर्टाइज काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द बिजनेस. तो यहाँ पर दोनों की एक्सपर्टीज यूज कर सकते हैं एज ए पार्टनर. डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पार्टनर्स में ही देखिए कि दोनों का जो वर्कलोड हो रहा है एक ही पर्सन पे नहीं होगा. बोथ आर द को ओनर ऑफ द कंपनी एंड बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क एज वेल एज द प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पर दोनों रिस्पॉन्सिबल. तो एक जो वर्कलोड है इट ऑल्सो बी distributed in the partnership. And to equal responsibility this only one person does not have to do all the work. Now the another disadvantages, अब हम disadvantages पढ़ते हैं. क्या पार्टनरशिप में सिर्फ we are going to discuss all the merits and advantages. Is there any kind of disadvantages in the partnership? क्या disadvantages है कि नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए. Now if we discuss about the disadvantages, अगर हम as far as disadvantages is concerned, we can say that possibility for the disagreement definitely by having a more than one person. अगर दो person are involved in a decision making process of the partnership firms, the partner may disagree on the some aspect of the operation, but here is the most important thing, mutual consent होना बहुत जरूरी है. अगर कोई disagree भी है तो डिसएग्री से क्या होता है, डिसएग्री से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू एंड ऑफ द बिजनेसेस. तो यहाँ पर दोनों पार्टनर की थिंकिंग डिफरेंट है, द स्किल्स आर डिफरेंट. मे बी द सम अनदर पर्सन मे थिंक्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, दे देयर परसेप्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन. तो दोनों की थिंकिंग अलग होगी तो डिसएग्री हो सकते हैं, मे बी द ऑन द सम एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस
ऑपरेशन और द डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। तो ये डिसएडवांटेजेस है कि पार्टनरशिप में डिसएग्रीमेंट हो जाता है एंड डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप विदाउट द फॉर्मल अग्रीमेंट दैट strictly stated process, and business may come to halt when the partner disagree and comes to end there. Definitely यहाँ पर ट्रांसफरिंग ओनरशिप बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर फॉर्मल अग्रीमेंट के बाद ही आप यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप टू द अनदर पर्सन। तो यहाँ पर एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, बिना फॉर्मल एग्रीमेंट के यू कांट कम्स टू यू कांट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। तो आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप करते भी हैं तो यहाँ पर बहुत क्वाइट लेंदी प्रोसेस है, और यहाँ पर जब भी आप कभी करेंगे तो यहाँ पर पार्टनरशिप एंड हो जाएगा, क्योंकि आप पार्टनरशिप में उसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगी। जब अगर आप जैसे उस पार्टनर से अब दूसरी को ओनरशिप करते हैं, अदर पर्सन के साथ ओनरशिप आप उसको दूसरे का ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पहले अपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म आपने ओपन की है उसको एंड करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू फिनिश द प्रीवियस पार्टनरशिप को फिनिश पड़ेगा, देन यू कैन ओपन द another kind of partnership, or you can have another kind of partner by transferring the ownership। तो यहाँ पहले एंड हो जाता है। another thing is the full liability in a partnership, all the members are the personally liable for the business related debt and may pursue in lawsuit। तो full responsible होते हैं, full responsible regarding the businesses activities के लिए responsible, because both partner are co-owner of the company। तो fully liabilities होती है, that is the most important। workload distribute हो जाता है। तो fully liabilities के कारण क्या होता है, दोनों पर्सन जो होते हैं वो liable हो जाते हैं, personally liable for the business related debt and may pursue in a lawsuit। तो ये वो बहुत एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे आ जाती है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड यू कैन से फुल लाइबिलिटीज इट्स गुड फॉर द पार्टनरशिप, बट इन मीन्स इज हेयर कि हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाता है। पार्टनर लाइबल टू पे repay debt even from their personal resources in case of the business asset are not sufficient to meet its debt। तो यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो आती है, समटाइम द लॉसेज इट दैट मच लेवल पे आ जाता है कि इट नॉट sufficient for the partner to incur that kind of loss, or in that case they have to be incur that kind of loss from their own personal property। अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से they have to be incur that kind of loss। तो उसको अपने लॉस इस तरह से रिपे करने पड़ते हैं। तो यहाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पे द रिपे द डेप्ट। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है। और मे बी द अनदर पर्सन मे आर नॉट इन अ कंडीशन टू पे पे द डेप्ट। तो ये फुली लाइबिलिटीज के कारण ये प्रॉब्लम्स आ जाती है पार्टनरशिप में। Now the example of the partnership. What is the example of partnership? Partnership is a business set up between the two and more family members and the family colleague and in an industry that support their skill set। तो यहाँ जब भी अगर आप दो मोर में फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, आप कलीग हैं, बहुत अच्छे से आपका पार्टनरशिप आप उन्हीं के साथ करेंगे जिनके साथ आपकी दोस्ती एंड फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जिसके साथ आपका जिनका बिहेवियर एंड ऑल आप एक्टिविटी को आप नोन है। एंड द पार्टनर ऑफ द बिजनेस टिपिकली डिवाइडेड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ। अगर आप कोई एग्री टू शेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर पर्सन, देन यू कैन हैव पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस को आप ओपन कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टाइप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप्स की पर्टिकुलर, आई एम नॉट डिस्कसिंग पार्टनर्स, मैं आपको बता रही हूँ पार्टनरशिप जो है, जो अगर दो एंड वन पर्सन अगर इन्वॉल्व होते हैं उनके टाइप्स क्या हो सकते हैं। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स दैट शुड बी यू हैव टू फेस। तो कितने तरह की पार्टनरशिप हो सकती है? दे आर द बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ टाइप्स of partnership। Like first one is the general partnership। General partnership allow the both partner to invest in a business with 100% responsible for any business debt। It means both the partner are 100% responsible for the or liable for the business debt। business के जो भी नुकसान होंगे उनके लिए वो 100% responsible है। and they do not require a formal agreement। means formal agreement करने की जरूरत नहीं होती। that is understood that both are partner are the co-owner of the company and equally responsible, equally liable for the कंपनी बिजनेस डेप्ट। तो यहाँ पर इसीलिए जनरल पार्टनरशिप में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लिस्ट रिस्क एज वेल एज द प्रॉफिट।
प्रॉफिट भी उनको इक्वली मिलेगा और रिस्क भी इक्वली शेयर करेंगे, दोनों के दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप जनरल पार्टनरशिप में, इफ यू वांट टू हैव एन सेकंड टाइप क्या है पार्टनरशिप का, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ यहाँ, लिमिटेड लाइबिलिटीज मीन आप as per the your extent of the investment or as per your their shares, आप अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग ही एंड एज पर द लिमिट ऑफ देयर शेयर यू आर लिमिटेड टूवर्ड्स द पार्टनरशिप। इट मीन्स दैट लिमिटेड क्या होता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्टनर हैव द लिमिटेड लायबिलिटी एक्सटेंड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द लिमिटेड इनपुट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स दैट एज पर देयर इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50-40% 30%, तो यू आर ओनली लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। मीन्स अगर आप 30% के लिए आप लिमिटेड ही आप लायबल होंगी फॉर द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द लायबिलिटीज आर कंसर्न। तो यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जहाँ पर जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो होते हैं विच जनरली एनकरेज इन्वेस्टर फॉर द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और फॉर द इन्वेस्टमेंट कैपिटल। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ अब आप अपना 17-80% अपना शेयर्स इन्वॉल्व अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और एज पर योर इन्वेस्टमेंट योर लायबिलिटी इज डिसाइडेड। तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है आपकी लायबिलिटीज कितनी। अगर आप 50% दे रहे हैं तो देन 50% रिस्पॉन्स, मगर लिमिटेड में एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पार्टनर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डिसाइडेड लिमिट डिसाइड होती है। तो यहाँ पर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। अगर किसी पार्टनर का 30% इन्वेस्टमेंट है तो 30% ही वो लायबल होगा बिजनेस में, तो एज अ पार्टनर वो 30% रिस्पॉन्सिबल, अदर पर्सन जो को 70% होगा। तो डिपेंड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट योर पार्टनरशिप इज डिसाइडेड। नाउ द अदर इज जॉइंट वेंचर एक्ट लाइक अ जनरल पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर सेम लाइक सेम जनरल पार्टनरशिप के तरह ही होता है, बट here is a clearly for the limited period of the time and single project। तो joint venture basically एक सिंगल एक छोटे रिस्की काइंड ऑफ वेंचर के लिए ही आप इस तरह की जब जनरल पार्टनरशिप आप कोई शॉर्ट टर्म और कोई शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग शॉर्ट पीरियड या सिंगल प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, दैट इज बेसिकली जॉइंट वेंचर एंड द पार्टनर इन जॉइंट वेंचर रिपीट द एक्टिविटी। यहाँ repeated activity and they will recognize as an ongoing partnership and will have to file as such and distribute accumulated partnership asset upon the dissolution of the entity। It means that अगर आप कोई भी पार्टनरशिप इस तरह किस्में कर रहे हैं तो बेसिकली ये शॉर्ट वेंचर्स होता है। वेंचर मीन्स रिस्की काइंड ऑफ बिजनेस होता है, ये शॉर्ट एंड सिंगल प्रोजेक्ट होता है। इट्स सेम लाइक अ जनरल पार्टनरशिप बेसिकली लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए होता है, वो लंबे समय के लिए आप कर रहे हैं। मगर जो जॉइंट वेंचर होता है आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए करें, लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये इस तरह की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ पार्टनरशिप। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड मीन्स विद द अदर फर्म फॉर द कॉमन पर्पस। तो बेसिकली जो ये कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव वर्ड इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है माय डियर स्टूडेंट की कॉपरेशन क्या, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, मीन्स अगर आप वर्किंग टुगेदर एंड विद द अदर फॉर द कॉमन पर्पस। अगर आप किसी के साथ एक कॉमन यू हैव एन सम कॉमन पर्पस, अगर आपके पास कोई कॉमन पर्पस है, कोई कॉमन मोटिव है, देन यू कैन कम्स इनटू दैट कोऑपरेटिव काइंड ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर अगर आप कोई आपका कॉमन पर्पस है तो आप इसमें इस तरह की बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव में इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु इज ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली जो मोटिव होता है वो आपका वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स होता है। यहाँ आप दो पर्सन एक साथ मिलते हैं, उनका मेन पर्पस होता है दे वांट टू working together and they have some common purpose, and basically this purpose is related to the welfare of the members, and this is driven by the protect the economic interest in the face of the possible exploitation at the hand of the middleman obsessed by the desire to earn the greater profit। Here is the main motive, ये एक जैसे सोसाइटी काइंड ऑफ बेनिफिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इसमें मेन पर्पस क्या होता है, जो दो एंड पर्सन अगर इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपस में मिलकर, अगर सोसाइटी में कई लोग होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं और वो उनका मेन बेसिकली जो पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है
पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 पर्सन मिल रहे हैं पर उनका प्रॉफिट मेकिंग काइंड ऑफ बिजनेस है। यहाँ पर दोनों पर्सन अगर दो या बहुत सारे लोग अगर आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉर्पोरेटिव में एक साथ मिल रहे हैं, उनकी एक टीम बन रही है, तो यहाँ जो मेन जो ड्रिवन दो मेन जो रीजन होता है, दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। द रीजन इज टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस पॉसिबल एक्सप्लाइटेशन। यहाँ सोसाइटी जो होती है वो अगर आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी बनती है, ये कॉमन इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड इंटरेस्ट होता है। और यहाँ बेसिकली मतलब ये होता है कि टू अवॉइड द एक्सप्लाइटेशन, एक्सप्लाइटेशन को रोकना। एक्सप्लाइटेशन किस तरह का, जो मिडल मैन होते हैं, एज यू नो द जो फार्मर होते हैं, वो अपनी जो भी अगर उन्हें सेल आउट करना होता है तो मिडल मैन जो होते हैं वो उनकी उनकी हेल्पिंग करते हैं। तो इस मिडल मैन में क्या होता है, वो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो दे टेक फ्रॉम दैट मैन, और उनको फार्मर को बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो, तो फार्मर रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो यहाँ पर फार्मर की हेल्प करेगी, वो मिडिल मैन का जो एक्सप्लाइटेशन है जो उसको रोकेगी, और वो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मर को प्रॉफिट करने की कोशिश करेगी। तो इन अ सेम मैनर डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में कम टुगेदर एंड दी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, देयर मोटिव इज फॉर द वेलफेयर। इनका मेन पर्पस जो होता है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, देयर पर्पस इज टू रिड्यूस एक्सप्लाइटेशन बिटवीन द मेन पार्टी। तो मेन पार्टी के बीच में जो भी एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, मीन्स उसको जो राइट नहीं मिल पा रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ बेनिफिट्स, तो उसको उसको राइट बेनिफिट्स बनाना, सोशल काइंड ऑफ बेनिफिट्स होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मीन्स जो ये सोसाइटी किस एक्ट, देखो हर एक जो भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, पार्टनरशिप भी आपने देखा तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। इन सेम मैनर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव, अगर आप बिजनेस काइंड ऑफ फॉर्म्स में आ रहे हैं तो आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आप किसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ ये एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो आप एज पर द this act you have to follow the rules and regulation and you have to establish your society as per this society act 1912. The word corporation is originated by cooperative. Corporation stand for the idea of living together and working together. And corporation is a forms of business organization, the only system of the voluntary suitable for the poorer people. तो ये एक basically voluntary organization means if you want to give the voluntary service, a person free to join, you can join, मतलब आप easily आप इस सोसाइटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर जो कंपल्सरी आप जो अगर आप इस तरह के बिजनेस को अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो आपको जो वॉलंटरी आप यू कैन ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली फॉर द पुअरर पीपल के लिए बनी होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एनी 10 पर्सन कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी 10, मिनिमम आपको 10 पर्सन चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आप अगर यू वांट टू हैव एन वांट टू एस्टैब्लिश एन कोऑपरेटिव society kind of business, then you at least should have to be required to have a at least the you can say that the most and what required to the consent of the at least 10 person to form a society। एंड यहाँ पर आपको कम से कम 10 लोगों की एग्रीनेस चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 10 पर्सन आपके पास इन्वॉल्व होने चाहिए। एंड द फंक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर एक्ट 1912 एंड द अदर कोऑपरेटिव सेक्टर, तो जो भी ये जो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो इस एक्ट के अंदर काम करती है। एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट ये सोसाइटी जिस स्टेट में इन्वॉल्व होगी उस स्टेट की कुछ एक्ट्स होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो एज पर द सोसाइटी एक्ट 1912 एंड एज वेल एज द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका पर्पस क्या होना चाहिए अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर ओपन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द कोऑपरेटिव, रेंडिंग द सर्विस रेदर देन द अर्निंग प्रॉफिट। डेफिनेटली यहाँ मेन जो पर्पस होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड द सर्विस, to provide the welfare of the to give the welfare to the members, to help the poorer people, and you can say them mutually help instead of competition। यहाँ पर आपको हर सबकी मदद करनी है instead of competition। you not do indulge in a competitive kind of business। आपको business इन competitive kind of business involve नहीं करना आपको इस तरह का। you have to be in as a mutually you have to be in run your businesses। एंड सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस, तो आपको सेल्फ हेल्प करनी है। तो ये बिजनेस ये मेन पर्पस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का।
सेल्फ हेल्प करना मीन्स आप अपनी तरफ से खुद यू इन्वॉल्व इन वॉलंटरी काइंड ऑफ एक्टिविटी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. एडवांटेजेस क्या है वॉलंटरी में? हम्म, जो बेसिकली ये जो इसके एडवांटेजेस है, एडवांटेज वाज द rendering the funding options. The thing is here, funding option, greater funding option. Cooperative society has to access government sponsored regular program. ये सोसाइटी होती है, इसको अगर फंड की जरूरत होती है तो दे इजीली हैव access द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ग्रांट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक USDA रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव. तो जिस तरह की कोऑपरेटिव एक्टिविटी अगर फार्मर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, तो जिस तरह की प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, दे कैन एसेस थ्रू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के थ्रू दे गेट द फंड. तो यहाँ एडवांटेज है, कॉर्पोरेट सोसाइटी को इजीली फंड मिल जाता है, दे कैन इजीली रेज द फंड थ्रू द गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है. मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव फॉलो द वन मेंबर एंड वन वोट फिलोसफी. यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, everyone in who is involved in a cooperative society, they have a right to say, and they regardless of the investment in without considering their investment, they are equally have a right to say रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ तो सब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, उनके पास सबके पास राइट्स होता है. एवरीवन हैज अ राइट टू से. तो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एवरीवन गेट द राइट ऑफ सेइंग इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहाँ सबके पास इक्वली होता है, इंस्टेड ऑफ देयर रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. उनकी इन्वेस्टमेंट को ध्यान नहीं दिया जाता, पर उनका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होता है. लेस डिस्ट्रप्शन. कोऑपरेटिव सोसाइटी अलाउ द मेंबर टू ज्वाइन. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली ये है कि हर एक मेंबर को अलाउ करती है ज्वाइन करने के लिए, लिव द बिजनेस विदाउट डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, दो एवरी द एनी पर्सन, यहाँ वॉलंटरी मेंबरशिप होती है. तो मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी, एंड ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर. देयरफॉर इट कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन एंड क्विट इन सोसाइटी. तो यहाँ पर although there is a procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society, but there is no compulsion to remain a member. The membership is open to all and irrespective of their religion, caste and gender. तो this is the most important thing is here, यहाँ पर आप easily लीव कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. और यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका एंड नहीं होता. बट पार्टनरशिप में आपने जैसे पढ़ा, एक पार्टनर अगर निकल जाता है तो पार्टनरशिप एंड हो जाता है. तो ये एक एडवांटेजेस है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस. रेजिंग कैपिटल. लार्जर इन्वेस्टर मे चूज टू इन्वेस्ट इन अदर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड दैट अलाउ टू अर्न अ शेयर. तो रेजिंग स्ट्रक्चर बहुत लार्जर इन्वेस्टर मे चूज टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस स्ट्रक्चर अलाउ देम टू लार्जर शेयर्स. तो यहाँ पर एज द कॉर्पोरेट ट्रीटेड एज द सेम एंड बोथ एंड लार्ज एंड स्मॉल. यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर कोई इन्वेस्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देता है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. रिगा तो यहाँ पर रेजिंग स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं रहती. मीन्स इन्वेस्टर जो है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसका शेयर ज़्यादा होना चाहिए, या उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, या उसको एज अ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व. तो यहाँ इस तरह का बेनिफिट नहीं मिलता. ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ ये एक तरह से रेजिंग कैपिटल में यहाँ पर जो लार्जर शेयर्स ट्रीटेड ऑल द इन्वेस्टर एज द सेम. तो ये कुछ इन्वेस्टर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए डिस्करेजमेंट हो जाता है. मीन्स वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमने ज़्यादा पैसा दिया, बट इंस्टेड ऑफ दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी आर नॉट कंसिडरिंग एज अ वैल्यूबल पार्टनर. तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. तो ये बहुत रिलैक्सिंग काइंड, इसका बहुत एक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है. एंड डू नॉट फुली परसिपेट. यहाँ पर जो इसकी वजह से क्या होता है, जो लायबिलिटीज़ होती है पार्टनरशिप, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर होते हैं, तो सब के सब इन्वॉल्व नहीं होते. तो यहाँ पर जो फुली डू नॉट पार्टिसिपेट, तो यहाँ पर हर एक मेंबर इक्वली, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका जो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी लैकिंग हो जाती है. तो यहाँ ये मेक डिसएडवांटेज है, हर एक मेंबर इक्वली अपने वॉलंटरी सर्विस दे रहा है, बट एज पर देयर इंटरेस्ट एंड डिजायर के अकॉर्डिंग दे रहा है. तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है कि इस पर्सन को ये काम करना ही करना है, या दे आर पर्सन आप इस हद तक आप या लायबल हो. तो ये थोड़ा अकाउंटेबिलिटी का इशू हो जाता है. मैनी कोऑपरेटिव एग्जिस्ट इन रिटेल सेक्टर में है, सर्विस में है, प्रोडक्शन में, हाउसिंग इंडस्ट्री में.
एन एग्जांपल ऑफ द बिजनेस ऑपरेटिंग एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियन जो होती है, यूटिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव है, एंड रिटेल स्टोर दैट आर सेल फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। दिस काइंड बेसिकली जो ये सब एग्जांपल है बिजनेस की, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल्स हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं आपको एग्जांपल्स अगर आपको डिटेल में बताऊं, तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं ना वेरी शॉर्ट वे वे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टाइप्स। क्या होता है, सबसे पहला होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपरेट, कितने तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब इसकी जो नेम्स है ये आपको इजीली कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंज्यूमर बेसिकली फोकस ऑन द, ये सोसाइटी बेसिकली हेल्प करती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर की हेल्प किस तरह से करती है, टू मेक गुड अवेलेबल, टू मेक गुड्स अवेलेबल एट द फेयर प्राइस। कंज्यूमर को फेयर प्राइस में विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस एट अ रीजनेबल राइट में इनको प्रोवाइड कर देती है अब कंज्यूमर को। तो यहाँ कंज्यूमर के लिए हेल्प करती है। दिस सोसाइटी इज बेसिकली वर्क फॉर द कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो दैट्स एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अपना बाजार काइंड ऑफ आपने सोसाइटी सुना होगा, तो ये बेसिकली कंज्यूमर की हेल्प करती है। नाउ द सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से मतलब ही सेम है। दिस सोसाइटी इज बेसिकली मेड फॉर द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के लिए हेल्प करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए यहाँ हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, इज मेक एन आइटम अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को हेल्प करती है टू अवेलेबल द आइटम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन काइंड ऑफ एक्टिविटी। एंड दिस इज इसका एप को APP को एग्जाम्पल है। नाउ द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग में बेसिकली दिस काइंड ऑफ बेसिकली सोसाइटी का जो वर्क होता है, इट्स हेल्प द प्रोड्यूसर इन इन देयर सेलिंग एक्टिविटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट की सेल्स में हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर का, एज वेल एज मैन्युफैक्चरर को सेल्स रिगार्डिंग हेल्प करते हैं। तो how to increase the sales of the producer, and they help basically regarding their sales kind of activity. तो how they help collect the product from the producer and sell them to the market. तो basically यहाँ producer से product लेते हैं, then sell them in a market and sell out the maximum product of their producer. तो यहाँ अमूल काइंड ऑफ आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। अंदर काइंड ऑफ सोसाइटी इज बेसिकली थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स होता है कि गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द मेंबर। अगर आपको ऐसी सोसाइटी, बेसिकली वो सोसाइटी होती है जो कि आपको आपकी क्रेडिट में हेल्प करती है। मीन्स जो बिजनेस होता है उस वो मैक्सिमम टाइम अपने बिजनेस क्रेडिट में दे देता है। मीन्स उसकी जो सेल आउट होती है मैक्सिमम क्रेडिट में होती है। मीन्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ ये क्या करती हैं कि आपको क्रेडिट में मीन्स आपको कस्टमर जब पेमेंट नहीं कर पाता तो वो उसको कुछ समय बाद पेमेंट करने की बात करता है। मीन्स क्रेडिट में पेमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे से ये सोसाइटी क्रेडिट में हेल्प करने में मदद करती है। तो कैसे मदद करती है, एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट ग्रांट लोन एट द रीजनेबल रेट्स। तो ये बेसिकली ये सोसाइटी लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर को या किसी भी बिजनेसेस को कि आपको मैं कम ब्याज में या कम रीजनेबल रेट में लोन प्रोवाइड्स करती है, ताकि इजीली एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट्स लोन देने में, उनको ग्रांट लेने में कस्टमर को या बिजनेस को इजीली लोन पैसा, मतलब यू कैन से दैट कैपिटल अमाउंट में उन्हें इजीली रीजनेबल अमाउंट में लोन प्रोवाइड करती है। तो ताकि क्रेडिट एक्टिविटी जो हो वो इजीली स्मूथ रन करे। लाइक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होती है जो कि कस्टमर को पैसा प्रोवाइड करती है, बिजनेस को प्रोवाइड करती है कि वो अगर चाहे तो इजीली लोन उसको प्रोवाइड करती है। तो ये सोसाइटी बेसिकली इजीली लोन प्रोवाइड करती है। नाउ द कोऑपरेटिव हाउस ग्रुप हाउस सोसाइटी हैड द मेंबर फॉर द हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी के लिए हेल्प करती है। हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, यहाँ बेसिकली मीन्स ये होता है कि जो लोग जो मेंबर्स होते हैं जिनको अपने लिए घर चाहिए, तो दिस सोसाइटी इज बेसिकली टू हेल्प टू प्रोवाइड द हाउसिंग टू द मेंबर्स। तो मेंबर्स को हाउस प्रोवाइड करनी थी। तो एनी सोसाइटी आपने देखा होगा कि आसपास में कुछ ग्रुप होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ बिल्डर्स होते हैं जो कि घर बनाते हैं, और ये घर बनाने वाले होते हैं पहले से ही अपना सेल आउट कर देते हैं और ये उनकी बिल्डिंग्स बनती है। तो ये सोसाइटी बेसिकली यहाँ पर लोगों को घर प्रोवाइड करने में होते हैं। तो उनको ये सोसाइटी वर्क करती है टू प्रोवाइड द हाउस टू द नीडी पीपल और द उनके लिए। तो यहाँ पर ये हाउस प्रोवाइड करती है। तो ये सुटेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, COOS का मतलब हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
कि सुटेबिलिटी क्या है, कि ये सूटेबल कब होगी। जनरली इट सीम्स एज कोऑपरेटिव सोसाइटी सूटेबल फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउएवर विद द लार्ज साइज इफको, इंडियन फार्मर एंड द फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बेसिकली, ये सोसाइटी का मैं जो नाम लेने जा रही हूँ आपके सामने, तो ये बेसिकली ये इफको सोसाइटी मैक्सिमम जो, अगर आप बिजनेस, अगर स्मॉल एंड मीडियम काइंड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ट सुटेबिलिटी है आपके लिए। और यहाँ पर इफ़को एंड कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग मिल्क है, ये सबसे सबसे अमूल जो है, ये एक तरह से एक एक्सेप्शनली लार्ज बिजनेस है, बट ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पार्ट है, बेस्ट एग्जांपल है। बट इन्होंने अपना आप को इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि ये बहुत लार्ज लेवल पे आ चुके हैं, इनका ऑपरेशन लार्ज लेवल पे। ये एक तरह से एक एक्सेप्शन केट है, मगर मैक्सिमम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो स्मॉल एंड मीडियम काइंड ऑफ साइज एंड ऑपरेशन होता है। इफ़ यू वांट टू हैव एन स्मॉल एंड मीडियम काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड यू वांट टू हैव एन एटलीस्ट मोर देन 10 person इन अ सोसाइटी, तो आप इस तरह की सोसाइटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका मेन पर्पज़ यहाँ पर बेसिकली वेलफेयर होना चाहिए, तो हेल्प द पुअर पीपल की हेल्प करना होना चाहिए, तभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिजनेस काइंड ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर सकते हैं। तो द now last type of the form of business organization I'm going to discuss, that is a joint stock company है। company is association of the person formed for the carry out the business activity and the legal status independent of its member। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज इट्स क्वाइट लेंथी, तो आज का लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज मैं इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी को विल कंक्लूड इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज फॉर ऑल टुडे माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।